much aware that today UGC and several other higher education monitoring agency is doing well to how to enhance the quality of education as well as research. So then we can't expect the research, particularly in social science and humanity, as well as natural science and applied science also, without the role of library. Of course, library plays a vital role in quality education and research. During my presentation, I shall try my level best to give an bird's eye of view about the academic library. What are the major recommendations of the committee, different committees and commission appointed by the government of India and University Grant Commission to enhance the higher education in India, as well as to strengthen the library services. After the brief introduction of the different committees and commission recommendation, I shall try my best to level discuss what are the different kinds of information sources which are useful for research and academic activities, and what are the different types of electronic and open educational resources. And then last but not least, my presentation will be the on plagiarism. As all of you are very much aware that plagiarism nowadays is a very burning topic, and everybody wants to understand to perform the research without any plagiarized content. So I ask the organizer to please allow me to share the screen and yes, sir, you can share it. Yeah, please. And sir, you can also deliver your lectures sometimes in Hindi also, because we have some Hindi speaking participants here, sir. अच्छा ठीक है, ओके। मैं हिंदी में भी अच्छा हिंदी में भी आपके यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी में पार्टिसिपेंट पहुंच गए हैं यार, इट्स वेरी मच मतलब वाकई में बड़ी अच्छी चीज है ये। थैंक यू सर। या स्लाइड शो Yeah, I am audible, Biplab, Dr. Biplab? Yes, sir, you are audible and also your slides are visible. Okay. Okay, sir. Then, see, what is academic library? Academic library क्या है? जैसे कि आप लोग सभी लोग, चूंकि आपको हिंदी में भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं दोनों में प्रयास करूंगा। जो लाइब्रेरी आप लोग जानते हैं, 3 टाइप्स के लाइब्रेरीज होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी एज वेल एज academic library and special library. Public libraries are for the use of public without any restriction of caste and religion and age. And academic library, particularly school library, college library and universities library. And the role of academic library is very much to strengthen the research in higher education. अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखें तो व्हाट आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एकेडमिशियन, क्या है? हम लोग क्या करते हैं, हम अपने नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं, जितने भी नॉलेज हैं उनका हम प्रिजर्व करते हैं और उसको हम डिसिमिनेट करते हैं अमंग द एकेडमिक फर्टिनिटी। एंड देन उसके बाद जो हम किस प्रकार उसको और फ्यूचर में हम किस प्रकार इनहांस कर सकते हैं, यही सब चीजें जो है एकेडमिक का रोल होता है। एकेडमिक्स जो हम लोग जो एकेडमिक फर्टिनिटी है उनका, और इन सभी में एकेडमिक लाइब्रेरी जो है वाइटल रोल अदा करती है। विदाउट रोल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी वी कांट थिंक अबाउट द क्वालिटी रिसर्च एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप जो मैंने बताया था, आप डिफरेंट कमीशन एंड कमिटी के रिकमेंडेशन को देखेंगे तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको डॉक्टर SR राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में जो कमिटी बनी थी, उसमें आपको उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, जो आप लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज। देन इन सोशल साइंस in natural science, laboratory and library play a vital role in strengthening the higher education and higher education and quality education. But in social science and humanities,
The role of library is very much in comparison to natural science and humanities. सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में जो लाइब्रेरी का रोल है वह उसकी तुलना में नेचुरल साइंस और जो आपका प्योर साइंस है, उसकी अप्लाइड साइंस है, उसकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम रिसर्च में हम लिटरेचर का यूज करते हैं, जो पब्लिश्ड नॉलेज है उसका हम यूज करते हैं। तो देखिए शुरू से ही आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था, जो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें इस चीज को बताया गया था, जो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर, ये एक अच्छे शिक्षाविद थे, बाद में भारत के प्रेसिडेंट भी हुए, और इन्होंने पहली बार जो है लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस को कैसे किस प्रकार लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस किया जाए, सो दैट एवरी यूजर कैन एक्सेस देयर रिक्वायरमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द लाइब्रेरी, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और उसी समय ये कॉन्सेप्ट आया डॉक्टर राधाकृष्णन के रिकमेंडेशन से ही, जो किस प्रकार न्यू और लार्ज लाइब्रेरी को खोला जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो उन्होंने कहा, जो टोटल बजट ऑफ द any higher education, at least 6.2% of the total budget of higher education should be allotted to the library for the library services. For what? For quality education and quality research. तो आपको 6.25 बजट जो परसेंटेज बजट है उसको इनहांस करने की देने की बात किया डॉक्टर राधाकृष्णन की कमीशन में, रिकमेंडेशन में। तो देखें किस प्रकार जो है यह धीरे, किस प्रकार उस समय जो रिकमेंडेशन आया। Then after that, UGC appointed a committee in 1957. The committee submitted report in 1959. The chairman of this committee was Dr. S.R. Ranganathan, the father of library science in India. और इनका जो रिकमेंडेशन था, मेजर जो रिकमेंडेशन था, वह टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर था, जो किस प्रकार स्टाफ का रेशियो क्या हो, स्टाफ का क्वालिफिकेशन क्या हो। लेकिन वह भी उस समय भी देखिए, इन्होंने कहा जो पर स्टूडेंट, देखिए 1957 में पर स्टूडेंट 15 रुपए और पर टीचर 200 रुपीज लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए देना चाहिए। देन जो नेक्स्ट कमेटी और कमेटी जो कमीशन जो अपॉइंट हुई भारत सरकार के द्वारा, वो आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर DS कोठारी। और उन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जो कोई भी एजुकेशन सिस्टम में नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग और डेंजरस, अगर कोई संस्था में लाइब्रेरी पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इससे ज्यादा उस संस्था के लिए कोई भी और ज्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता है। और उस समय उन्होंने डॉक्टर कोठारी के रिकमेंडेशन में ही हुआ, अगर कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलेगी तो सबसे पहले वहां पर एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। और उस समय जो उन्होंने टोटल स्टूडेंट जो है 25 रुपीज पर स्टूडेंट और 300 पर टीचर पर ईयर, ये बजट का एलोकेशन डॉक्टर डॉक्टर DS कोठारी ने दिया। देखिए दिन आप सभी लोग बिल्कुल जानते होंगे, इन एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UPA, when Dr. Manmohan Singh was the prime minister, he appointed a committee under the chairmanship of Sem Petroda, termed as National Knowledge Commission, और उन्होंने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया लाइब्रेरी के बारे में। सेट अप ए नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पर पूरा एक राष्ट्रीय स्तर पे एक आयोग बनाने की बात की गई। प्रिपेयर ए नेशनल सेंसस फॉर ऑल लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनके लिए एक सबका एक काउंटिंग करने के लिए कहा गया। उसके बाद जो लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन है उसको पूरा इनहांस करने के, उसको पूरा रिवाइज करने की बात की गई। स्टाफ का पैटर्न जो है उसको पुनः एक्सेस करने की बात की गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा सेटअप नेशनल सेंटर लाइब्रेरी फंड। सेंटर लाइब्रेरी फंड मींस सेंट्रल गवर्नमेंट शुड create a centralized fund so that the library services can be strengthened। इसी के तहत आप लोग देखे होंगे जो रूसा के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, रूसा के तहत सभी लाइब्रेरीज को जो है, चाहे वह कॉलेज लाइब्रेरी हो चाहे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो, सबको लाइब्रेरी सर्विसेज स्ट्रेंथन करने के लिए बजटरी प्रोविजन किया जाता है।
और उन्होंने कहा प्रमोट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी के जो आपका सर्विस है उसमें आईसीटी का यूज बढ़ाने की बात किया गया। और उन्होंने कहा फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन। बहुत सारे आपके भी, आप जिधर जिस लोकेलिटी में हैं आप लोग, वहां भी बहुत ऐसे स्कॉलर्स हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, दे वांट टू डोनेट देयर ओन बुक। उसको कहते हैं जो आप लाइब्रेरी में प्रिजर्व कीजिए, किस चीज के लिए? फॉर द कमिंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आपका जो उनके पास प्रिजर्व पब्लिश्ड नॉलेज है उसको वो कह रहे हैं जो आप सब तक पहुंचाइए, वो ऑफकोर्स प्रिजर्व होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया। सेन कोत्रदा के समय में, उसी समय बहुत सारे रिकमेंडेशन आया। आप हायर एजुकेशन में देखेंगे तो उन्होंने ही कहा जो आपको जो आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जिसके तहत आजकल सभी यूनिवर्सिटी में जो 10 GBPS का जो आपको लीज लाइन दिया जा रहा है, और उसी में आप देखेंगे जो आजकल सभी हायर एजुकेशन में जो वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल रही है, ये सब उसी के रिकमेंडेशन का था। And nowadays we are working towards the national education policy which was published in 2020. Then what are the major recommendations of the national education policy? See, the major emphasis of the national education policy, how to enhance the reading facility, reading habit, how to inculcate the reading habit among the citizens of the India. किस प्रकार भारत की जो हमारे नागरिक हैं उसमें रीडिंग हैबिट को इनकलकेट किया जाए, और प्रिंट मटेरियल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल तक उसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश में। किस प्रकार का बुक, हम किस प्रकार बुक को सभी जगह इनहांस करें, उसके लिए हमें एक बुक प्रमोशन पॉलिसी होना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स, सबके पास देखिए दो चीज है, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। जब कहीं कहीं पर उपलब्ध है लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर दोनों बात की गई, अवेलेबिलिटी हो, साथ ही उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, यूज भी होना चाहिए। देन उसके बाद उसको कहा गया कि रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करें आप। उसके बाद इसमें ये जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, उस सब को अपने लाइब्रेरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की बात की गई। और उसके बाद जो उन्होंने मेजर कहा, स्टेप विल बी टेकन टू एनहांस द ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शन। आपको किस प्रकार हम ऑनलाइन रिसोर्सेस का यूज कर सकें, इसके लिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी बात की गई है। और साथ ही साथ कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात, इसमें जो स्टाफ, जो लाइब्रेरी स्टाफ है, जो लाइब्रेरी सेक्टर में स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको ये कहा गया है जो किस प्रकार कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, किस प्रकार सबको आप एक्सेस दे सकें, किस प्रकार जो न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी सर्विसेज में आ रही है उस तक आप पहुंचे। Then CPD continue professional development, how to make trained the library personnel. Then strengthen the existing library, किस प्रकार जो हमारी लाइब्रेरी है उस प्रकार उसको किस प्रकार बढ़ोतरी किया जाए, उसकी सेवाओं में, इस पर भी काफी ध्यान दिया गया। और रूरल एरिया में लाइब्रेरी सेटअप की बात की गई है। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप सभी शिक्षाविद हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मेजर जो थ्रस्ट एरिया है, टू इम्पार्ट द एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेज। जो भी भारत में डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट लोकेलिटीज में जो डिफरेंट भाषाएं बोली जाती है, उसको आपको उसमें जो है एजुकेशन देना है, उसमें रीडिंग मटेरियल को उपलब्ध कराना है। और उसके बाद चिल्ड्रन लाइब्रेरी की बात की गई है, किस प्रकार बच्चों को लाइब्रेरी सर्विसेज दिया जाए। और कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरी की बात की गई है, इंटरनेट कंसोर्टिया की बात की गई है। तो इस प्रकार आपने देखा जो भी आप राधा कृष्णन कमेटी से कमीशन से लेकर के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप इनके मेजर रिकमेंडेशन को देखेंगे तो कांट इनहांस द क्वालिटी एजुकेशन, वी कांट इनकलकेट, वी कांट प्रोवाइड द हायर क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च without the strengthening of the library services, particularly academic library services। हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना लाइब्रेरी सर्विसेज को बढ़ाए हुए हम सेवा देने का, हम हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन की बात करने का, क्वालिटी रिसर्च की। अगर आप देखेंगे तो एकेडमिक लाइब्रेरी nowadays are providing a variety of services, reading, reference, circulation, inter library loan, CAS, SDI, न्यूज़पेपर, OPEC, ये सभी आप लोग जानते हैं। देन जो नीचे है ऑनलाइन एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज
resources, user or education, information literacy, then plagiarism. आप लोग सभी लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ले रहे हैं। आपको मैं कुछ चीजें इसमें जरूर बताऊंगा। जैसे आप इंटर लाइब्रेरी लोन की बात किए हैं, ट्रेडिशनली ये सर्विस बहुत अच्छी थी। इसमें ये था जो आप डिफरेंट जो भी लाइब्रेरी में आपके पास कलेक्शन नहीं है वह दूसरे लाइब्रेरी से आप उसको एज ए लोन ले सकते हैं। आप लोग जहां भी अपने लाइब्रेरी में होंगे वहां आप जो आज के डेट में एक डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क एक एजेंसी है, एक प्राइवेट एजेंसी है जो बहुत ही नॉमिनल फीस में 13,500 फीस है उसका। वह उसके पास अपना उसके डेटाबेस में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और साथ ही साथ पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में जितने भी लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, चाहे आपका मद्रास यूनिवर्सिटी हुआ, IIT, सब उसके मेंबर हैं। और अगर किसी जो मेंबर उसके जो मेंबर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो भी मेंबर है, अगर वो किताब की उसको रिक्वायरमेंट है और कहीं भी साउथ एशियन कंट्री में वो किताब उस लाइब्रेरी में उपलब्ध है तो आपके पास वो डेलनेट आपको प्रोवाइड करती है। सिर्फ आपसे पोस्टेज चार्ज लेती है वो। और ध्यान रहे जो ऑनलाइन रिसोर्सेस है उसमें आपसे वो कुछ नहीं लेती है, आपके मेल पर वो कंसर्न इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगी। तो आप लोग सभी लोग अपने यहाँ इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए अगर आपके पास बजटरी प्रोविजन हो, नहीं हो तो आप लोग आपस में भी कुछ कंट्रीब्यूट करके आप डेलनेट का चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर पढ़ने लिखने में जिज्ञासा हो तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे देखेंगे आप डिजिटल जो लिटरेसी की बात की गई, आप सभी कुछ जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब ये है हम कैसे चीजों को समझ सके। इसी में आप आज देखेंगे जो डिजिटल लिटरेसी की बात की गई है, डिजिटल लिटरेसी मीन्स digital literacy means how to use the digital information resources। अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर का 2015 में जो हम अगर देखें जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट था, डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्या था मेजर चीज, वह यही था, 3 चीजें थी मेजर उनका, टू प्रोवाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टू डेवलप डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड टू aware how to use digital information। मतलब हम डिजिटल जो चीजें हैं उसको हम किस प्रकार यूज करें। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट थे डिजिटल इंडिया का। और आपको मैं बताऊं जो ये कोरोना पैंडेमिक में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। एक चीजें ये हुई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर सोसाइटी आवर पीपल आर वेल अवेयर विथ डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेस। हम लोग सभी लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए जान गए, डिजिटल जो गैजेट्स हैं उसका यूज करने के लिए जान गए। आजकल तमाम जैसे अभी आपका ये वर्कशॉप हो रहा है, डिजिटली हम लोग कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है, सब लोग आप लोग यूज कर सकते हैं। तो एक जो गवर्नमेंट तमाम जो कोई भी चीजें होती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो जो इसका पॉजिटिव जो कोरोना पैंडेमिक का जो पॉजिटिव चीज है वह यह है जो आप सब लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन को यूज करने में मैक्सिमम नंबर जो है आपको एक बच्चे से लेके एक वृद्ध तक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ चाइल्ड टू ओल्ड एज पीपल तक सभी लोग डिजिटल इंफॉर्मेशन का यूज करना, डिजिटल गैजेट का यूज करना सीख गए। जो डिमेरिट है वह डिमेरिट ये हुआ जो प्रिंट कलेक्शन का यूज पिछले 1.5 ईयर से नहीं हो रहा। हम लोग लाइब्रेरी में बहुत सारे रुपए लगा करके बजट लगा के इंफॉर्मेशन सोर्सेस को प्रोक्योर किए हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू close down of the higher education system, our users are not in a position to get access this type of print resources। फैकल्टी सुरू आहे का? नाही ना, फक्त रिसर्च Then plagiarism detection, then nowadays plagiarism detection is one of the major components of the library services of higher education। इसके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग को मैं बताऊं what type of information sources। जब आप सोशल साइंस में रिसर्च की बात करते हैं, जो आपका मेन जो वर्कशॉप का टॉपिक है, क्योंकि काफी चीजें कवर करना है, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा आप लोग बाद में उसको रेज कर लीजिएगा। तो क्योंकि आपका रिसर्च जो है वो डॉक्यूमेंट्री है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में मैक्सिमम रिसर्चेज जो
जो है डॉक्यूमेंट्री है, उसमें हम सर्वे मेथड वगैरह का जो यूज है, डाटा कलेक्शन टूल्स का हम यूज करते हैं, क्वेश्चन आयर चाहे शेड्यूल हो, चाहे इंटरव्यू हो, देयर आर वैरायटी ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स। तो आप प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज, आप सभी लोग जानते हैं प्राइमरी सोर्सेज जो बिल्कुल हमने फील्ड वर्क से लाया है, प्राइमरी सोर्सेज जो जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश होते हैं वह प्राइमरी सोर्सेज है। लेकिन जब वही जर्नल्स का आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल हो जाता है तो वह सेकेंडरी सोर्सेस है। जितने भी आपको इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, ये सब रेफरेंस टूल्स हैं वो सब सेकेंडरी सोर्सेस हैं। टर्सरी सोर्सेस मींस हाउ टू यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। जैसे आपने डायरेक्टरी देखा, जैसे वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक है, जिसमें कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में पूरे विश्व में कौन सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी एजुकेशन किस सब्जेक्ट में क्या डिग्री दे रही है, डिप्लोमा दे रही है, वह वर्णन है। उसी प्रकार जो आप टेलीफोन डायरेक्टरी आपने सुना होगा। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, फॉर्मल सोर्सेस एंड इनफॉर्मल सोर्सेस। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फॉर्मल सोर्सेस एंड इनफॉर्मल सोर्सेस। देन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस। प्रिंट रिसोर्सेस मींस प्रिंट बुक, प्रिंट जर्नल्स, प्रिंट डाटाबेस, द रिसोर्सेस जिसको कि हम लोग नेकेड आई से पढ़ सकें, बिल्कुल आप आसानी से पढ़ सकें। देन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस जो मेजर थ्रस्ट एरिया है अभी, जो आपको बहुत जल्दी हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस मींस जिसको कि हम नेकेड आई से विदाउट एनी डिजिटल गैजेट्स का हम नहीं पढ़ सकते हैं। और जितने भी प्रिंट रिसोर्सेस हैं उनको सब जब डिजिटलाइज कर दिया गया तो वो हो गया डिजिटल रिसोर्सेस। और डिजिटल रिसोर्सेस में जैसे आप ई बुक्स देखेंगे, ई जर्नल्स देखेंगे, ई डाटाबेसेस देखेंगे, आप सभी लोग, और आज के डेट में इस सब का यूज बहुत हो रहा है रिसोर्सेस में। डिजिटल रिसोर्सेस को आप दो भाग में फिर कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑफलाइन देन ऑनलाइन। ऑफलाइन रिसोर्सेस द कंटेंट, द रिसोर्सेस व्हिच आर स्टोर्ड इन ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस like pen drive, DVD and other device. Then online resources which are stored in a server and users can access this type of resources through network technology, IC information and communication technology. तो आप जितने भी resources को आप ईमेल की आप जो नेट की सहायता से एक्सेस करते हैं तो वह सब जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस में ऑनलाइन रिसोर्सेस हुआ। अब आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस को? तो आप सभी लोग जानते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड से एक्सेस किया जाता है। जैसे आप कोई चीज का मेंबरशिप लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड आप सब लोगों को पता होगा। जस्ट आप यूजर नेम आप टाइप करते हैं, देन पासवर्ड, देन रिसोर्स को आप डाउनलोड करते हैं, एक्सेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। देन थ्रू आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको सभी इंस्टीट्यूशन में आजकल लीज लाइन के थ्रू इंफॉर्मेशन सर्विसेज दी जा रही है। एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें कि सर्वर लगा होता है, जिस पब्लिशर से आपने कोई इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस लिया है वहां से आपके आईपी पर एक्टिवेट कर दिया जाता है। देन यूजर कैन एक्सेस दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेस। वहां एक आईओ बॉक्स लगा होता है, आईओ बॉक्स से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा, फिर आप उसको यूज करेंगे। वाईफाई में क्या है, जो आपको यहाँ पर क्या है, जो इंटरनेट जो आईपी रेंजेस है उसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेस के कनेक्ट एक्सेस के लिए आपके पास लीज लाइन होना चाहिए, आपके पास इनपुट आउटपुट बॉक्स होना चाहिए। लेकिन वाईफाई का आप पिछले 5 to 6 ईयर बैक जाइए, यूजीसी ये कह रहा है कि सभी हायर एजुकेशन से प्रोवाइड वाईफाई फैसिलिटी इन ईच एंड एवरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, यू कैन से इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यह किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? नेशनल नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन से, जो सेन पत्रोदा का चेयरमैनशिप में जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन से हुआ था। तो वाईफाई में एक राउटर लगा होता है, उसका एक कैचमेंट एरिया होता है, उसमें सभी रिसोर्स को एक्टिवेट करके उससे एक्सेस दिया जाता है। देन रिमोट एक्सेस, रिमोट अभी तक जितने रिसोर्सेस हैं उसको आप देखिए, जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड तो बहुत ट्रेडिशनली आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आईपी में आपको एक कैंपस में यूज कर सकते हैं जहां पर कि लीज लाइन हो। वाईफाई में भी बस लीज लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एक सर्टेन रेंज में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन एक रिमोट एक्सेस मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशन में जो रिसोर्सेस हैं उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द पर्टिकुलर रिसोर्सेस or any resources which are available in your education institution from anywhere anytime। आप कहीं भी और किसी भी वक्त उसका यूज कर सकते हैं। और रिमोट एक्सेस के आज के डेट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, और इनफीडनेट आप लोग नाम सुने होंगे, वो भी एक इनफीड टेक्नोलॉजी के द्वारा, इनफीड प्रोजेक्ट के द्वारा, जिसमें वो सिबोलिथ करके एक आपका उनका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे आपको सर्विसेज दी जाती है।
आती है। हाउ टू बिल्ड ए डिजिटल कलेक्शन, मैं बहुत ब्रीफ में कहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। डिजिटल कलेक्शन बिल्डअप के लिए आपके पास जरूरी है जो आप कैसे, चूंकि आप लोगों में से मैक्सिमम जो है कभी किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिजिटल कलेक्शन जब बिल्डअप करना हो तो उसके मेंबर होंगे, तो एटलीस्ट वी शुड नो हाउ वी कैन डेवलप द डिजिटल कलेक्शन, कैसे डिजिटल कलेक्शन करें। इसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास प्रॉपर एक वेल फ्रेम पॉलिसी हो और हमें किस रिसोर्स को डिजिटलाइज करवाना है। ध्यान रखें, आप सभी रिसोर्स को डिजिटलाइज नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पर आईपीआर जो खास करके कॉपीराइट आता है। और आपको बता दें, एक ऑथर का जो एक आपने नाम सुना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें आपको जितने भी हैं, आपको कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, स्टैंडर्ड्स है, ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर है, सब है। और जितने भी आपके प्रॉपर्टीज हैं, चाहे लैंड प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके और भी जो घर परिवार में प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी की एक खासियत ये है जो यू कैन चेंज, यू कैन गिफ्ट इट, यू कैन सोल्ड इट, आप इसको बेच सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। सेम वही चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आता है, आप इस किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। और हम एकेडमिशियन का जो सबसे ज्यादा काम पड़ता है वो पड़ता है आपको कॉपीराइट से। तो कॉपीराइट में एक ध्यान रखिए, एक अगर कोई ऑथर एक किताब लिख रहा है या तो उस ऑथर का उस पर राइट, उसका लाइफ टाइम आफ्टर द डेथ 60 ईयर, उसके मरने के बाद भी उस पर उसका 60 साल तक अधिकार रहता है, उसकी रॉयल्टी जो है उसके फैमिली मेंबर को जाता है। तो आप डिजिटल कलेक्शन जब करेंगे और इसको सब एक्सेस फॉर ओपन एक्सेस कर देंगे या किसी, तो यह कॉपीराइट का वायलेशन है। और ऐसा करने पर जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 63 है उसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई में जो है आपका 50,000 से लेकर के 2 लाख तक जुर्माना या 6 महीने से लेकर के 2 साल तक आपको कारावास हो सकता है। तो आपकी वेल फ्रेम पॉलिसी होनी चाहिए। हम उन रिसोर्सेस को डिजिटलाइज ना करवाएं जो कि ऑलरेडी डिजिटलाइज हो गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है उसका। तो इस सब को फिर हम सब्सक्राइब करके, आज के डेट में क्या है, जो प्रिंट कलेक्शन सभी लाइब्रेरीज की एक लिमिटेशन है, जो उनके पास स्पेस कम है, तो उसके लिए जरूरी है जो हम डिजिटल कलेक्शन को बिल्डअप करें। हम डाउनलोड करके कर सकते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ वे थ्रू व्हिच यू कैन डेवलप आवर डिजिटल कलेक्शन। और उसके बाद जो है आप कंसोर्टिया कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कंसोर्टिया जो आपको, कंसोर्टिया क्या है, एक संसाधन सहभागिता होता है जिसमें डिफरेंट जो एजेंसी है, कई एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलकर कर सकता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी कंसोर्टिया होता है। तो जैसे आपका ई शोध सिंधु है, एनालिस्ट है, जो आप इनफिलिपनेट नाम सुने होंगे। इन ई शोध सिंधु में थाउजेंड्स ऑफ ई जर्नल्स जो है आपको इंडियन यूनिवर्सिटी को जो 12B के अंदर रिकॉग्नाइज है उसको फ्री एक्सेस मिलता है। फ्री एक्सेस मींस पब्लिशर को जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनफिलिपनेट के माध्यम से पेमेंट करती है और यूनिवर्सिटी उसको, यूनिवर्सिटी का उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी बांध रखा है, उस कैटेगरी के अनुसार उसको एक्सेस दिया जाता है। एनालिस्ट जो खास करके आप कॉलेज के हैं, जितने भी कॉलेज के पार्टिसिपेंट होंगे, आपसे मैं पुनः यहाँ कहूंगा जो आप सभी लोग एनालिस्ट का मेंबरशिप लीजिए। यहाँ पर आपको 5,000 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यूजीसी के ऑटोनोमस बॉडी है, इनफिलिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एक नॉमिनल चार्ज है 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ प्लस 18% जीएसटी। इसमें आपको 6,000 प्लस पीयर रिव्यूड जर्नल्स मिल रहे हैं और वो उसमें आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड से एक्सेस है। आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो आप लोग अपने यहाँ एनालिस्ट का मेंबरशिप ले लीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल कास्ट है। इससे आपको नेक के ग्रेडिंग में सुविधा मिलेगी और आपका जो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी रिसर्च की बात हो रही है, यू कैन स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन थ्रू providing quality education and quality research। तो आप एनालिस्ट का सब्सक्रिप्शन में जैसा मैंने आपको बताया, जो जिस इंस्टीट्यूशन के पास जितना बजटरी प्रोविजन है उसके अनुसार उस प्रकार के रिसोर्सेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए हम बहुत जल्दी, चूंकि हम ये बाइलिंगुअल बड़ी मुश्किल हो जाएगी करने में, थोड़ा सा हम उसको देख रहे हैं, चीजें बहुत हैं। फ्री रिसोर्सेज, देयर आर वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल फ्रीली, यू कैन एक्सेस इट, यू कैन प्रिजर्व इट, यू कैन डाउनलोड इट, आप उसको कर सकते हैं। देन ये सब देन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, हम कुछ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में भी बताएंगे। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मींस द रिसोर्सेज व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। देखिए फ्री
रिसोर्सेस और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस में कभी भी आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, बोथ आर फ्रीली अवेलेबल, बट देयर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। फ्री रिसोर्सेस से देयर इज नो ऑथेंटिसिटी, यहाँ पर प्रमाणिकता नहीं है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस में क्या है, जो उसकी प्रमाणिकता है, वो दिस रिसोर्सेस आर ऑथेंटिक। आप वो सब रिसोर्सेज जो भी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस में है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसी चाहे एनजीओ लगे हुए हैं वो आपको इसमें सर्विस देती है। ये देखिए ई शोध सिंधु से इतने रिसोर्सेस मिलते हैं, आप ये सब देख सकते हैं, एनालिस्ट आप कर लीजिएगा, ये सब रिसोर्सेस उसमें है, थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हो थ्रू एनालिस्ट। आप उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो एनालिस्ट से ये भी मिलेगा। जब आप ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस की बात करेंगे तो ये मैंने बताया, जो आपको यह कब आया, ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस की बात कब आई, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का सेक्शन 26.1 जो है वह कहता है everyone has the right to education। अगर हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है तो वह कैसे होगा, वह तभी होगा जब मास लेवल पर रीडिंग मटेरियल अवेलेबल हो, और इसी के लिए आया मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस से। यहाँ पर इसमें जितने भी वार्ड लेवल के जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट हैं, वह सब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे रिसोर्सेस जितने भी आपको, जितने भी टाइप के रिसोर्सेस हो सकते हैं, ऑडियो है, ऑडियो विजुअल है, वीडियो है, पूरा आपका लेसन प्लान है, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है, तमाम प्रकार के रिसोर्स को डिजिटलाइज करा के और फ्री एक्सेस दिया जाता है, और बिल्कुल ये ऑथेंटिक रिसोर्सेस है। भारत में आप देखेंगे, जैसे आप स्वयं का नाम सुने होंगे, जो स्वयं प्रभा है, जो तमाम उसके टेलीविजन चैनल्स आ रहे हैं, और उसमें देखेंगे आप, तो आप स्वयं में भी देखें तो अभी कम से कम उसमें बेसिक, देयर आर बेसिक फिलॉसफी क्या है स्वयं का, टू प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल विद द बेसिस ऑफ 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। क्या है? क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। आपको क्वालिटी एजुकेशन है, सबको मिलना चाहिए, और सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी है, एक्सेसिबिलिटी है और इक्विटी है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप स्वयं में भी देखेंगे उसमें 9 जो कोर्स बने हुए हैं ऑल ओवर इंडिया के, जितने भी अच्छे एकेडमिशियन हैं सबों ने वह कोर्स बनाया है, और उसके देखेंगे जो 9 देयर आर 9 कोऑर्डिनेटर्स आर इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग द कोर्स थ्रू स्वयं। तो उसमें आप देखेंगे आपको यूजीसी है, एनसीईआरटी है, एआईसीटी है, आपको एनसीईआरटी है, एआईसीटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये सभी एजेंसी इन्वॉल्व है उसका कोर्स कंटेंट बनाने में। और आपको उसमें करीब करीब आप देखेंगे तो 1900 कोर्स तैयार हैं, और उसको सब एजुकेशन ले रहे हैं विद द नॉमिनल फी। आप उसको नॉमिनल फी से उसका ले सकते हैं, और डिफरेंट एजेंसी इसको एजुकेशन दे रही है। और तो आप लोग अपने जो एरिया में, जिस लोकेलिटी में है, आप उसको स्वयं से भी, जो मुख्य मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट आया है उसके तहत भी आप एजुकेशन लेने के लिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब देयर आर सम रिसोर्सेस, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस व्हिच आर लिस्टेड in the 2 slides. All of you are requested to please look into the slide and try to access this type of resources. आप इसको यूज कीजिए, और आपके R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यह बहुत रोल अदा करेगा, और आप इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होना चाहिए। यूनेस्को आप देखेंगे, जो यूनेस्को में पहले कोई भी जो ट्रेडिशनल जो 50 साल 100 साल, जैसे इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU के लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ एक सेपरेट यूनाइटेड नेशंस का कलेक्शन होता है, रिसर्चर जाते हैं, वहाँ धूल है, तब स्टाफ प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करता है। लेकिन nowadays the all document which are being published by the UNESCO, which are freely available through its website. आप इसके वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप जो ये वेबसाइट है इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। हाथी ट्रस्ट में देखेंगे आप, जो विश्व के जो अच्छे R&D इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब मिल करके इसमें आपको करीब इसमें 2 करोड़ के आसपास स्कॉलरली कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, यह जो है पूरे कॉमनवेल्थ कंट्री में जो ओपन एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रोवाइड कर रही है, और इसमें ओपन एजुकेशन सिस्टम से वैरायटी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑन कॉमनवेल्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म. Anyone can easily access these resources. They can download it, they can use it, they can disseminate it. इसको ओपन एंड थीसिस डिसर्टेशन, अगर आप जब जो ये आपका वर्कशॉप हो रहा है वह हो रहा है क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो रिसर्च मेथड पर हो रहा है, और उसमें बहुत जरूरी है जो एटलीस्ट वी शुड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, विश्व में क्या हो रहा है रिसर्च एंड डिसर्टेशन में. तो बहुत सारे, जैसे आप इंडिया में देखेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड में है शोध गंगा वगैरह है, उसमें आपको बहुत सारे 3 लाख के ज्यादा उस पर थीसिस उपलब्ध है. इसको देखिए फ्री एक्सेस है, यहाँ पर करीब 8 लाख के मोर देन 8 लाख थीसिस आर फ्रीली अवेलेबल. आप इसको एक्सेस कीजिए, देखिए आप इसको एक्सेस कीजिएगा लेकिन कॉपी मत कीजिएगा, फिर प्लेगरिज्म में आप इजीली आप ट्रैप हो सकते हैं. उसको कैसे यूज करना है अभी हम बताते हैं. देन डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, यह डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स में इसमें लैक्स ऑफ ओपन एजुकेशनल बुक्स आर अवेलेबल. यू कैन इजीली एक्सेस इट, डाउनलोड इट एंड डिसेमिनेट इट. आप किस प्रॉपर रेफरेंस से अपने स्टूडेंट को आप इसको डिसेमिनेट भी कर सकते हैं. डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, यहाँ कम से कम एटलीस्ट 15,000 पीयर रिव्यूड जर्नल्स आर अवेलेबल, और सभी जर्नल्स का बिब्लियोग्राफिकल यूआरएल डिटेल है पूरा, आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. इंटरनेट आर्काइव्स, यहाँ पर भी बहुत, ये सब जितने भी रिसोर्सेस आपको ग्लोबली, दीज आर द ग्लोबल रिसोर्सेस एंड फ्री ऑफ कास्ट रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस प्लेटफॉर्म are very much useful for social science and humanities student. Dr. Radhakrishnan has said that the education, quality education and quality research in social science and humanities, without library you can't imagine it. अगर आप इंडिया में की बात करें तो there are variety of open education platforms are available in Indian content. NPTEL, National Program on Technology Enhanced Learning, यह एक सब बहुत मतलब इंडियन कंटेंट में एक क्लेम कर रही है जो हम विश्व के सबसे बड़े हैं. करीब 850 इस पर डिफरेंट टाइप्स के कोर्स मटेरियल उपलब्ध हैं उसको, और खास करके टेक्नोलॉजी के लिए जो आपका प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस के लिए, हालांकि अब इसमें सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के भी रिसोर्सेस आ गए हैं, आप इसका यूज कीजिए. और जो मेजर 7 IITs, IIT कोलकाता, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, ऐसे जो IIT बैंक, ये सब जो IITs है, और नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये सब इसमें इन्वॉल्व होकर इसके कंटेंट को डिजाइन कर रही है. ई ज्ञान कोश, यह एक डिपोजिटरी है किसका, ओपन एंड एजुकेशन रिसोर्सेस का. इग्नू इसको मॉनिटर करती है, इसमें वैरायटी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है. ईपीजी पाठशाला आप सभी लोग जानते होंगे, इनक्लिबनेट इसको मॉनिटर करती है, और इसमें जो है मोर देन 70 डिसिप्लिन के आपको कोर्स कंटेंट तैयार है. और ईपीजी पाठशाला में ही ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड अबाउट 700 बुक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. 700 टेक्स्ट बुक, आपको 700 टेक्स्ट बुक आइडेंटिफाई किया गया है, जो आप जिसको कि इनक्लिबनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं. एंड दीज बुक्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट एज फार एज रिसर्च आल्सो. एनसीईआरटी, यहाँ पर 12th तक की जो एनसीईआरटी किताबें हैं सभी उपलब्ध है. NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या कॉरेस्पॉन्डेंट से जो स्कूल एजुकेशन लिया जा रहा है उससे वहां पर रिसोर्स है. देन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसको आप सभी लोग यूज कीजिए. यह भारत सरकार का बहुत ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा आइटम अवेलेबल है. इस पर आप IIT खड़गपुर के द्वारा ये मॉनिटर हो रहा है, इस पर अपने आप को इनरोल कीजिए आप, और इसमें देखेंगे आप पेंडेमिक में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन को रीपैकेज किया है. एक स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में साइंस, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस और रिसर्च के लिए अलग अलग किया गया है. और आप अपने को रजिस्टर्ड करके इसमें एक्सेस कीजिए. आप वैरायटी, आपको लगेगा जो इस हमारा जो 5 डे का वर्कशॉप है, अगर आप इन
सब रिसोर्सेस को अगर आप यूज करेंगे तो आपको इससे बहुत सुविधा मिलेगी। देन भारत सरकार का जो भारतवाणी प्रोजेक्ट भी एक एजुकेशन थ्रू इंडियन लैंग्वेजेज, भारतीय भाषा जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उस भाषा में जितने लिटरेचर अवेलेबल हैं उस भाषा में एजुकेशन देना है। तो इसमें आप भारतवाणी में अपने को इनरोल्ड कीजिए और उससे भी एक्सेस कीजिए। शोध गंगा में करीब 3 लाख से ऊपर थेसिस है जो इंडियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो पीएचडी वर्क हो रहे हैं उससे वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। विद्यामित्रा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, जितने भी कंटेंट डेवलप किए गए हैं वह विद्यामित्रा इंफिनिट इसको मॉनिटर कर रही है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इन्फोपोर्ट में जितने भी इंडियन एकेडमिशियन है उन्होंने जो डिफरेंट कोर्स, डिफरेंट ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज से जो डिफरेंट कंटेंट बनाए हैं उस सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो इन 2 स्लाइड्स में जो मैंने आपको रिसोर्सेस बताया इसका आप मैक्सिमम यूज कीजिए अपने क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी रिसर्च के लिए। आज देखिए इन दिनों में जब क्वालिटी रिसर्च की बात करेंगे, हम इथिकल एस्पेक्ट्स पर बात ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप आज के nowadays there are several agency are involved in framing the guideline how to conduct quality education in India as well as world। विश्व के विभिन्न देशों में आज सभी जितने भी हायर एजुकेशन मॉनिटरिंग एजेंसी है वह सब इसमें इन्वॉल्व है कि किस प्रकार हम एजुकेशन में खास करके जो थीसिस पीएचडी वर्क हो रहे हैं उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोडक्ट किया जाए। और तमाम प्रकार के विश्व पर भारत में भी बहुत डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। इसमें मैं 3 डॉक्यूमेंट की आपसे चर्चा करूंगा। जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है 2018 में ऑन प्लैगियरिज्म, नोटिफिकेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लैगियरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और दूसरा जो है आपको यूजीसी ने जो आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क की जब बात आई तो उसमें जो 2 क्रेडिट का कोर्स दिया है आपको, कोर्स वर्क जिसमें कहते हैं। अगर इनका आप सब देखिएगा यूजीसी के वेबसाइट से आप डाउनलोड करके, तो इसमें जितने भी इसके कंटेंट हैं वह सब क्वालिटी की बात कर रहा है, वह सब इथिक्स की बात कर रहा है। देन सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ यूजीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट, गाइडिंग डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। द कमिटी अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड वेब ऑफ साइंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर भटनागर, द देन वाइस चांसलर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेज। इस पर जो तो इन 3 डॉक्यूमेंट को मेरी आपसे सलाह है जो आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को अवश्य देखिए अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो। और इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपने रोजमर्रा की जीवन में लाइए। रोजमर्रा से मतलब ये है जो अपने रिसर्च, जो आपका एक एकेडमिशियन का रिसर्च ही तो डेली का रूटीन वर्क है, तो आप इसमें लाइए अपने को, इस सब को देखिए आप। हम इथिक्स वगैरह पर एकदम नहीं जा रहे हैं एकेडमिक। हाँ, एकेडमिक इंटीग्रिटी और इथिक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बस 2 लाइन में ये चीज बताएंगे। आप देखिए जो एकेडमिक इंटीग्रिटी हो चाहे इथिकल एस्पेक्ट हो, चूंकि आपका इस पर मैं देख रहा था हो गया है, तो यहाँ एक सीरीज ऑफ फेथ है, विश्वास है। एकेडमिक इंटीग्रिटी और रिसर्च इन इथिक्स की हम जब बात करते हैं तो हमें एक विश्वास है, कहाँ से, फ्रॉम द रिसर्चर टू डिसिमिनेशन, जो आपका इंफॉर्मेशन जो आपने रिसर्च किया है उसके पब्लिकेशन तक एक रिसर्चर का विश्वास होना चाहिए। जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का रिसर्च पर होना चाहिए। देन दोनों का जब आपका रिसर्च हो गया तब उसका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर विश्वास होना चाहिए। देन उसके बाद जो वह पब्लिकेशन के लिए जाता है, जब अपने रिसर्च वर्क को आप आर्टिकल के रूप में या बुक के रूप में पब्लिश करते हैं, तो जो पब्लिशर जब उसको रिव्यू करता है तो रिव्यूअर पर आपको विश्वास होना चाहिए, आपको एडिटर पर विश्वास होना चाहिए। तो इन सब चीजों से ही हम एकेडमिक इंटीग्रिटी और रिसर्च इथिक्स को सेव कर सकते हैं। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी ने इन्होंने जो एकेडमिक इंटीग्रिटी के जो 5 फंडामेंटल वैल्यू बताए हैं, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, फेयरनेस, रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए रिसर्च में मेजर 3 चीज इन्वॉल्व है। क्या है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में जब करते हैं तो आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, तो यह पहला स्टेप है जो सिनॉप्सिस, रिसर्च डिजाइन। ये दूसरा है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, और देन तीसरा है डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसिमिनेशन ऑफ योर रिसर्च। इन 3 चीजों में आप
आपको अपने इंटीग्रिटी को सेव करना है, आपको अपने इथिक्स को सेव करना है। कैसे सेव करेंगे? जब आप टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपको देखना है जो मेरे रिसर्च से संबंधित पहले कोई रिसर्च हुआ तो नहीं है। आप ये देखिए, जब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस की फ्रेमिंग करें तो प्रॉपर ऑनेस्टी से कीजिए। दूसरा, जब डाटा का आप कलेक्शन करते हैं तो डाटा कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं जो आप 10 सैंपल ले लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको इथिकल एस्पेक्ट्स को लाना है। जब हम एनालिसिस करते हैं जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स आते हैं, उस टूल्स का प्रॉपर यूज करना चाहिए। हम जब पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन देते हैं, डायग्राम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी हमें प्रॉपर एकेडमिक इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद जब डिसेमिनेशन की बात आता है, जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो प्लेगरिज्म नहीं, प्लेगराइज नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पहले जो रिसर्च हो चुके हैं उसको प्रॉपर आपको एक्नॉलेज करना है। जो प्रॉपर रिसर्च, ऐसा नहीं जो पहले का रिसर्च हुआ है उसको प्रॉपर साइट कीजिए। विदाउट साइटिंग यू कांट क्लेम दिस पब्लिकेशन इज दिस रिकमेंडेशन इज माय ओन। आपका नहीं हो सकता। आप प्रॉपर उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कीजिए, आपने जहां से हेल्प लिया है उसको कीजिए, और जो फंडिंग एजेंसी है उसको प्रॉपर एक्नॉलेज कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च टॉपिक, हाइपोथेसिस, सिनॉप्सिस, व्हाटएवर, मतलब रिसर्च जो आपका डिजाइन है, उसके बाद डाटा कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है, और आपका डिसेमिनेशन है। आप सब कुछ कर लिया, आप बहुत बढ़िया रिसर्च कर लिए, सब कर लिए, लेकिन वो रिसर्च एक अगर पीएचडी थीसिस बन के एक लाइब्रेरी में रिजर्व हो गया, शोध गंगा के साइट पर चला गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वह प्रॉपर अच्छे जर्नल्स में, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश होना चाहिए, ताकि उसको प्रॉपर लोग उसका यूज कर सके। और आज बहुत संक्षेप में प्रीडेटरी पब्लिशर और प्रीडेटरी जर्नल्स, इससे आप लोग अपने को रोकिए। प्रीडेटरी पब्लिशर वह पब्लिशर है जो कि बिना जर्नल्स के पब्लिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बिना इंप्लीमेंट किए हुए आपसे कुछ पैसा लेकर के आपके आर्टिकल्स को रातों रात छाप देती है। वही जर्नल्स वही है जो पैसा लेके आपसे छाप दिया जाता है। जनरल पब्लिकेशन के कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं। जैसे आपने अगर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया किसी पब्लिशर के, किसी एडिटर के पास, तो एडिटर जो है उसको कहीं आपको पीयर रिव्यूअर के पास भेजेगा। पीयर रिव्यूअर जो है उसका जो फीडबैक होगा वो रिव्यू करेगा। अगर आप चीजों को जो कहना चाह रहे हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है तो फिर आर्टिकल आपके पास एडिटर के थ्रू आता है और उसको आप देखेंगे। उसके बाद वह आर्टिकल पब्लिश होती है, तो वह प्रॉपर आर्टिकल है। और प्रीडेटरी पब्लिशर और प्रीडेटरी जर्नल, जो प्रीडेटरी पब्लिशर जो प्रीडेटरी जर्नल्स पब्लिश करते हैं, वह कहीं से आपको ऑथेंटिक नहीं है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। कहां से आप अच्छे जर्नल्स के बारे में सूचना पाएं, तो यह स्लाइड में दिया है। जैसे आप जर्नल साइटेशन इंडेक्स है, पब्लिकेशन इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो कि आज के डेट में साइंस फाइंडर भी उसको कहते हैं, पब्लिकेशन मोड है, ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशर एसोसिएशन है, वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, यूजीसी केयर लिस्ट है। These are the major database indexing and abstracting database through which one can easily identify the peer-reviewed journals, the core journals of his her discipline. आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप देखिए पीयर, आपको मैंने कुछ स्लाइड स्किप भी किया जो किससे आप अच्छा जर्नल्स कहें, क्योंकि ये सब प्रेजेंटेशन में काफी 1 घंटे में हमें इसको बाइंडर करना है, तो इससे आप लोग इसको देखिए। आइए आप 10 से 15 मिनट और हमें 5-7 मिनट एक्शन कर दीजिएगा। प्लेगरिज्म, व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म मींस आप सभी लोग जानते होंगे, जब हम किसी और के पब्लिकेशन को हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं और बिना साइटेशन दिए अगर उसके नाम उस पब्लिकेशन को अपने नाम से कर देते हैं, तो यह प्लेगरिज्म कहलाता है। इफ वी take some lines, some few lines, some stanza, some recommendation from the earlier done work, earlier published work, and without citing the work, one can complain that this is the work done under the supervision of particular author, या मेरे चेयरमैनशिप में हुआ, मेरे निर्देशन में हुआ है। तो जब हम किसी दूसरे के किए वर्क
को बिना साइट किए करते हैं तो वही प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म और कॉपीराइट में अंतर है। क्या है? प्लेगरिज्म की जब बात करते हैं तो यह एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और मोरल ऑफेंस है, और यह एक कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंटेशन जो है यह एक लीगल ऑफेंस है। कौन करता है इनफोर्स प्लेगरिज्म को? इंटेलेक्चुअल पीयर्स। जब आप कोई चीज को प्लेगराइज करते हैं तो ध्यान रहे इस पर डिसीजन जो है यह कोर्ट में नहीं जाता है। जो यूजीसी का जो 2018 का रेगुलेशन है उसके आधार आपको डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल कोर्स को जो आपके केस है उसको एग्जामिन करती है, फिर इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के आधार जो रिकमेंडेशन देती है, जो उस इंस्टीट्यूशन का, जो उस कॉलेज का, जो इस यूनिवर्सिटी का, जो आईआईटी का, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एपेक्स बॉडी है उस पर वह निर्णय लेती है। और क्या निर्णय लेगी? जो कि यूजीसी के रिकमेंडेशन में बताया गया है। और यहाँ क्या है? कॉपीराइट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको कोर्ट डिसीजन लेती है। इस पर कोर्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सेक्शन 63 के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा चलता है जो कि 6 महीने, मिनिमम 6 महीने और 50,000 और मैक्सिमम 2 लाख और 2 साल तक आपको उस पर केस कारावास हो सकता है। अब इससे हम कैसे बचें? हाउ टू अवॉइड इट? बिल्कुल सही है, कहीं से बस आपको प्लेगरिज्म को अवॉइड करना है तो साइट द ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर को आप साइटेशन दें। जबकि यहाँ कॉपीराइट से आप बचना है। गेट द परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ऑनर। आपको कॉपीराइट ऑनर से परमिशन लेना है जो हम इसका यूज करें या नहीं करें। देन फेयर यूज की इंडियन कॉपीराइट एक्ट में फेयर यूज की बात किया गया है। ऐसे फेयर यूज में ऐसे 6 कंपोनेंट हैं जहां आप उसका यूज करेंगे तो आपको किसी से परमिशन लेने की बात नहीं होगी। फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड प्राइवेट स्टडी, क्रिटिसिज्म और रिव्यू रिपोर्टिंग आइटम, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इस सब में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, टेक्सुअल प्लेगरिज्म एंड सोर्स कोड प्लेगरिज्म। टेक्सुअल प्लेगरिज्म मींस जब हम किसी आइटम को, जैसा मैंने बताया, जो कोई पहले पब्लिश्ड हुआ है उसको अपने नाम से बिना साइटेशन का दे देते हैं तो वह टेक्सुअल प्लेगरिज्म हुआ। इसमें इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, लिटिल प्लेगरिज्म, मिसरिप्रेजेंटेशन और पैराफ्रेजेस, सेल्फ प्लेगरिज्म, ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म, ओरल प्लेगरिज्म, ये सब आते हैं। और सोर्स कोड प्लेगरिज्म में ये है जब हम कोई, खास करके नेचुरल साइंस में होता है, जब लैब में या कंप्यूटर साइंस में जब कोई हम सोर्स कोड डिजाइन करते हैं और उस सोर्स कोड को बिना साइटेशन का कोई उसको यूज कर लेता है, तो यह 2 टाइप का प्लेगरिज्म है। और खास करके आप देखिए सेल्फ प्लेगरिज्म को लेकर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है आपको एक पब्लिक नोटिस जारी की है 20 अप्रैल 2020 को। सेल्फ प्लेगरिज्म में यह है जो आप अपने एक रिसर्च वर्क को कुछ समय के बाद दूसरे टाइटल से पब्लिश कर देते हैं। तो यूजीसी कह रही है ऐसा नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो उसको प्रॉपर साइटेशन दीजिए। अपने प्रीवियसली वर्क जो आपने कभी लिखा है, ऑफ कोर्स अगर आपका एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है तो उसी पर आगे काम करेंगे, और आपने जो पहले वर्क किया है उसका आप जरूर यूज करना चाहेंगे। तो जब यूज करेंगे तो उसको आप प्रॉपर साइटेशन दीजिए। तो इस प्रकार आप सेल्फ प्लेगरिज्म से बच सकते हैं। क्या है प्लेगरिज्म के रीजन क्या है? बिल्कुल अनअवेयरनेस है, कॉपीराइट के बारे में पता नहीं है, हमको इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है, आसान हो गया है चीजों को कॉपी पेस्ट करना, जल्दी से हम काम करना चाहते हैं, ये सब कुछ प्लेगरिज्म के कारण है। और कैसे बचे हम प्लेगरिज्म से? बिल्कुल आसान है। आप कोई भी चीज, एकदम ध्यान रखिए, जब भी किसी पहले कोई भी चीज का आप जो पहले आपने वर्क हुआ है अगर उसको अपने रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आप उसको प्रॉपर एक्नॉलेज कीजिए। यूज योर ओन वर्ड्स और आइडिया। और अगर दूसरा यूज करते हैं तो गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर कॉपीड, एडॉप्टेड और पैराफ्रेजेज मटेरियल, उनको प्रॉपर क्रेडिट दीजिए। अवॉइड यूजिंग अदर वर्ड्स, माइनर कॉस्मेटिक, कुछ कॉस्मेटिक चेंज करके मत, जैसे देयरफॉर को आप 10 कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ये सब प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। अपना गुड राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए, साउंड डोमेन नॉलेज बढ़ाइए, मशीन ट्रांसलेशन मत कीजिए। कुछ लोग ट्रांसलेशन आज के डेट में गूगल से सब ट्रांसलेशन हो जाता है, लेकिन नहीं, आजकल यूनिकोड बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, ये गलत, ये तो बोल रहे हैं मैं। 5 मिनट्स मोर टाइम, तो आपको जो उसमें
यूनिकोड बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और अगर उसमें आप कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो आसानी से जो है मशीन गूगल वगैरह से ट्रांसलेशन करते हैं तो आसानी से वो प्लेगराइज जो कंटेंट है वो पकड़ में आ जाती है। तो आप इस सब चीजों को रोकिए, आउटसोर्सिंग किसी दूसरे से अपने वर्क को ना करवाइए। रेफरेंस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब आप सब लोग जानते हैं। अब प्लेगरिज्म डिटेक्शन कैसे होता है? प्लेगरिज्म डिटेक्शन मैनुअल प्लेगरिज्म होता है और एक टेक्सचुअल जो आपका कंप्यूटराइज है, जो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। मैनुअल प्लेगरिज्म में ये है जो हम किसी भी वर्क जो हुआ है उसको हम पहले आपको बता दिया जाए तब तो संभव है जो वहां से किया गया है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। जो सॉफ्टवेयर प्लेगरिज्म है इसमें क्या जितने भी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, तो जितने भी सॉफ्टवेयर वाले हैं, जितने भी द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स और इट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जो भी हो, तो जितने भी ऑनलाइन कंटेंट है सबसे उनका एक एग्रीमेंट है। और जैसे ही आप उस रिसोर्स पर उसको आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं और विद इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर वो पूरा आपको रिजल्ट दे देते हैं। और जब भी रिजल्ट आता है तो वो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है सिमिलरिटी इंडेक्स बताता है। सिमिलरिटी इंडेक्स मींस आपका जो आर्टिकल है, आपका जो पब्लिकेशन है, प्रीवियसली जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है इतने % सिमिलर है, और आप कहां से सिमिलर है वो पूरा आपको डिस्प्ले कर देता है। तो इस प्रकार जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन है वह आपको सॉफ्टवेयर की सहायता से हो रहा है। आज के डेट में बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैं आपको कतई नहीं सलाह दूंगा जो भी आपको फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसका यूज कीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभी कैसे अच्छे ऐसे केसेस आए हैं जो आपका सेमिनल वर्क है और वह आपको अपना वर्क समझ लिया है। तो आज के डेट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के थ्रू उनका एक देयर इज अ प्रोजेक्ट अंडर द नेम ऑफ शोध शुद्धि प्रोजेक्ट के तहत उरकुंड, और आज उसका नाम बदल के अब हो गया है आवर रीजनल। यह एक सॉफ्टवेयर मोर देन 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया है। आप जिस कॉलेज में होंगे तो उस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से आप संपर्क कीजिएगा, आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोग उरकुंड और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का बहुत टर्निटिन तो ऑफ कोर्स बेस्ट सॉफ्टवेयर है उसका यूज कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो जो इन्फ्लिनेट के साइट पर है उसका आप यूज की, इन्फ्लिनेट दे रही है उसका यूज कीजिए। जिस यूनिवर्सिटी ने एमओयू नहीं किया है, जो आप लोग अगर ऐसे किसी यूनिवर्सिटी से हो तो एमओयू अपना करवा लीजिएगा। ओरिजिनल इसका इसलिए नाम आजकल कुछ 6 महीने पहले हुआ है क्योंकि अब ये इंडिक लैंग्वेजेज जो है तमाम हिंदी है, अरबी है, पर्शियन है, तमिल है, तेलुगु है, जितने भी उन सब भाषाओं में भी यूनिकोड बेस्ड में अगर टाइप है तो उसको यह पकड़ लेता है, उसको वह डिटेक्ट कर लेता है। तो आप इसमें से किसी भी अब उरकुंड का जैसे आप वर्किंग को जब इस ढंग से आप देखेंगे तो इस ढंग से इसका अब देखिए, यह जब कोई भी सॉफ्टवेयर का आता है इस ढंग से एनालिसिस आएगा। आप देखिए जो ऑरेंज कलर के जो स्ट्रिप्स हैं इसका मतलब यह है जो इतने लाइन जो है आपके कंटेंट का वो प्रीवियसली जो डॉक्यूमेंट है उससे लाइन बाय लाइन मिल रहा है। जब इसको हम इस ढंग से करेंगे तो आप देखिए जो भी ये अगर आपका 52% सिमिलर इंडेक्स बता रहा है, और इस ढंग से जितने भी हैं आप देखेंगे जो जहां से भी आइटम है इस इधर उसका पूरा लिखा गया है, जो आप यहां से इसका कॉपी किया गया है। यह सब तो आपको जब उरकुंड की बात करेंगे आप बस 5 मिनट्स मोर, जो उरकुंड जो यूजीसी प्लेगरिज्म की जो पॉलिसी आई है 2018 में, उसमें जो मेजर थीम है, ऑब्जेक्टिव जो है अवेयरनेस क्रिएट करना है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करना है, जो आपको कैसे प्लेगरिज्म चेक किया जाए, और जितने भी रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन और इस ढंग का आपको वर्कशॉप हो उसमें एक प्लेगरिज्म पर एक सेशन होना चाहिए, और जो स्किल्ड व्यक्ति हैं इस पर आप वर्क कर सके। चूंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले 4 इयर्स से मैं इस चीज को सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ उरकुंड को, तो इसमें आप और भी कोई भी सॉफ्टवेयर से संबंधित जो प्लेगरिज्म से हो तो आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं। आप इसमें क्या है, कर्विंग ऑफ प्लेगरिज्म में ये कहा गया है जो हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है अपने यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड एक
सिस्टम डेवलप करे ताकि जो भी उनके यहाँ प्लेगरिज्म, थीसिस सबमिशन, डिसर्टेशन सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन से पहले ही प्रॉपर चेक हो सके। और साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट जब पीएचडी सबमिट करे तो उनसे ये कहा गया है दे शुड सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट इंडिकेटिंग दैट द वर्क कैरिड आउट बाय मी इज फ्री फ्रॉम प्लेगरिज्म। यह जो एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नॉर्म्स, मतलब 10% तक अप टू 10% तक एक्सक्यूज है। अगर आपका 10% तक सिमिलर कंटेंट है तो वहां कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट को भी एक अंडरटेकिंग सबमिट करना है और साथ ही साथ सुपरवाइजर भी को भी एक सर्टिफिकेट देता है। सुपरवाइजर आज के डेट में क्या सर्टिफिकेट देता है? दिस इज सर्टिफाइड दैट XYZ has submitted the PhD thesis under my supervision and his her work is genuine in nature, but the supervisor should write one line more that his her work is plagiarized free as per UGC norms। तो आपको वो भी उसमें इंडिकेट करना है। और इनक्लिबनेट में एक शोध जो आपका एक सॉफ्ट कॉपी है उसको सबमिट करना है और एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपना इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी बनाना है जिसमें कि जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का पब्लिकेशन है सबको उस पर अपलोड करना है। अब देखिए ये चीज आपको इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है। जब सिमिलरिटी इंडेक्स आपका 50%, 60%, 40% जाए तो कभी घबराइए मत, क्योंकि वह तो आपका जो भी आर्टिकल, जो भी कंटेंट आपने सबमिट किया है, जो अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको आपसे वो कोट कर रहा है। और आपको मैंने बताया जो ऑलवेज कोट ओरिजिनल ऑथर। अगर आप शेक्सपियर के बारे में कोई चीज लिख रहे हैं तो शेक्सपियर को ओरिजिनल कोट कीजिए, कालिदास के बारे में लिख रहे हैं तो कालिदास को ओरिजिनल कोट कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है? ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस विथ नेसेसरी परमिशन, मतलब जितने भी आपने कोटेड वर्क है जो साइटेशन दिया है उसको आपको हटाना है, उसको आपको अनटिक करना है। रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफरेंस, एक्नॉलेजमेंट सबको आपको अनटिक करना है। तो जब इस सब अनटिक करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका जो सिमिलरिटी इंडेक्स है काफी नीचे आ जाएगा। देन जेनेरिक टर्म, लॉ, स्टैंडर्ड, सिंबल, स्टैंडर्ड, इक्वेशन, जितने भी ये सब है ये सब भी सिमिलर इंडेक्स बताएगा। तो इसको खत्म करना है। और कहाँ एकदम नहीं प्लेगरिज्म होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, इस सब में नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे आप जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए तो आप घबराएं मत, इसको प्रॉपर यूज कीजिए और इस ढंग से इसको आप अनटिक कीजिए। आपका जो ये लेवल है अप टू 10 और 60 तक मैं आपको बताऊंगा। डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पैनल जो मैं बता चुका हूं बड़ी ब्रीफ में, वह अगर कोई किसी का कंप्लेन करता है तो डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल नेचुरल जस्टिस के आधार पर उस कंप्लेन को, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया है, उसकी भी बात सुनता है और अपने इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है जिसमें ये सब मेंबर होते हैं, उनको अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और वह जो है फिर फाइनल सबमिट करता है हायर अथॉरिटी को। अब क्या है, क्या पनिशमेंट है? 2 मिनट्स मोर। 10% तक कोई पेनाल्टी नहीं। अगर थीसिस के परिप्रेक्ष्य में अप टू 40%, मतलब एबव 10 to 40, आपको कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर फिर आप पीएचडी अपना सबमिट कीजिए। और एबव 40 to 60, अगर आपका थीसिस में प्लेगरिज्म का सिमिलरिटी इंडेक्स जो है 40 से 60 है तो आपको 1 साल के लिए पीएचडी से डीआर कर दिया जाएगा और आपको 1 साल के बाद फिर सबमिट करना है। और अगर सिमिलरिटी इंडेक्स 60% से ज्यादा है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान रहे अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो एक स्टेप आपका आगे पनिशमेंट होगा। अगर आपने 10 to 40 वाला किया है, दोबारा वही कर दिए तो 40 से 60 वाला होगा। अगर 40 to 60 वाला फिर दोबारा वही कर दिए तो एबव 60 वाला होगा। और अगर कोई बेनिफिट ले लिया है, पीएचडी का इंक्रीमेंट ले लिया, पीएचडी के जगह पर अपॉइंटमेंट हो गया और उस पर बाद में कंप्लेन हुआ जो इनका जो थीसिस है इससे सिमिलर है, इससे प्लेगराइज है, तो जब तक डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पैनल को रिपोर्ट नहीं देती है और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पैनल के रिकमेंडेशन के आधार पर जो हायर मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो हायर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वह निर्णय नहीं लेती है, तब तक आपको जो बेनिफिट मिला है वो सस्पेंडेड रहेगा। और उसके बाद जैसा भी निर्णय होगा, अगर आपके विरुद्ध है तो आप पर जो कार्रवाई हो जाएगी, अगर आपके पक्ष में है तो आप ऑफकोर्स बरी हो जाएंगे।
देन जो टीचर के लिए जब आर्टिकल वगैरह आप पब्लिश करते हैं तो उसमें क्या है, अप टू 10% तक कुछ नहीं है, 10 to 40 जो है इसमें आपका मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ हो जाएगा, और एबव 40 to 60 में क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट तो विथड्रॉ होगा ही, 1 एनुअल इंक्रीमेंट रुकेगा, और आप 2 साल तक नए रिसर्च स्कॉलर को अपने पास एडमिट नहीं कर पाएंगे। और अगर एबव 60 है आपका सिमिलरिटी इंडेक्स, तो इसमें जो है आपको 2 इंक्रीमेंट रुकेगा, 2 इंक्रीमेंट रुकेगा, और 2 साल तक आपको जो है आप किसी भी आप 3 इयर्स तक आप किसी भी पीएचडी स्कॉलर और एमफिल स्कॉलर को आप सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी एक स्टेप आपको आगे पनिशमेंट होता है। अगर सपोज कीजिए आपने 60% वाला दोबारा किया, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम के अनुसार अगर ऐसा कोई टीचर करता है, अगर उसका 2 आर्टिकल 60% से ज्यादा सिमिलर इंडेक्स में पब्लिश्ड है, तो वह सस्पेंशन और टर्मिनेशन का भी भागीदार होगा। और पुनः यही जो यहाँ पर जो इवन हायर अथॉरिटी भी, अगर जो वाइस चांसलर डायरेक्टर अगर वो भी इसमें प्लेगरिज्म में अगर उनके ऊपर भी केस है, तो वह अपने आप को इससे अलग करेंगे, और जब तक कि इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पूरा अपना डिसीजन नहीं दे देती है, और उसमें उस पर भी वही कार्रवाई होगी जो कि एक नॉर्मल टीचर के आधार के पर होता है। और अगर आपको मान लीजिए पहले आपके ऊपर कोई बेनिफिट ले लिए हैं, तो उस पर जो कार्रवाई हो, आप पर जो कोई कंप्लेन करता है, तो आपकी तब तक कार्रवाई आप पर टर्मिनेट रहे, सस्पेंड रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फाइनल एक्शन नहीं हो जाता। तो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में अभी, हालांकि मैं थोड़ा सा एक्सीड कर गया टाइम का, मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताने का प्रयास किया जो डिफरेंट कमीशन ऑन कमेटी के रिकमेंडेशन क्या है एकेडमिक लाइब्रेरी खास अपॉइंटमेंट के लिए, और उसके बाद जो है आपने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में बताया, और प्लेगरिज्म के बारे में बताया। सॉरी, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कीजिए, मैं 10 मिनट मैं ज्यादा चला गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। No sir, there is no problem. It was very interesting lecture, so yeah, we are ready, no problem. I think there are so many query, and all of you are requested, please raise your query. Basically, I have highlighted the only thing. I am not gone through the depth presentation, so this presentation is very only, you can say that what's eye of view. So each and every participants are requested to make your query, whatever you have. आपके पास जो भी है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें अभी मिसिंग है, मैंने 1 घंटे में काफी चीज कवर करने का प्रयास किया, और आई डोंट नो वेदर यू हैव गेट सम पॉइंट और नॉट। आप कुछ समझ पाए या नहीं पाए, मैं इसको नहीं बता सकता। There is a question from Shipat, I think. Shivat sir, please. Shipat sir, do you have a question? Sir, Please is my Please unmute. Shivat sir, आपके माइक ऑन नहीं है। Yeah. Sorry. My question is, what is the main types of citation? See, there are citation system and citation styles. Okay. Yeah. There are 2 types of citation. One is Vancouver style, then another is parenthetical style. Yeah. And then this is the citation system, and there are more than 3,000 type of citation styles. You Yes, can sir. adopt any citation style, and nowadays there is a Mendeley citation system. You can easily manage your entire publication from Mendeley style. So I suggest all of you to please go through the Mendeley style and try to implement and try to incorporate the Mendeley style in your research and academic activities. Yes, sir. Thank you, sir. Heartily thanks, sir. Any other questions? Participants, please. Yes, sir. Sir, I have a question. Sir, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि literature review is comes under plagiarism. Why not? The vice chancellor. देखिए,
आप कर रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं ये बड़ी बेसिक प्रश्न है, इसको आप सभी लोग ध्यान से देखिए। प्लेगरिज्म को मैंने कहा ना, जो लिटरेचर रिव्यू एक रिसर्च में एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कि 100% सिमिलर इंडेक्स है। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियसली रिसर्च हुए हैं उसको हम रिव्यू करते हैं, ठीक ना। तो जब हम उसको प्लेगरिज्म के अंतर्गत जब चेक करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, तो उसको हमें अनटिक करना है। बहुत यूनिवर्सिटी क्या कर रही है आज के डेट में, जो वह लिटरेचर रिव्यू वाले चैप्टर को वह प्लेगरिज्म चेक करवा ही नहीं रही है। नो, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। लिटरेचर रिव्यू ऑफ कोर्स, लेकिन आप उसको प्रॉपर चेक कीजिए कम से कम। ये तो कभी कभी कोई रिसर्चर क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या, जो आपने कोई टॉपिक लिया उससे जितने आर्टिकल मिले और रिसर्च वर्क मिले उसको आपने रिव्यू किया। बहुत रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो लिटरेचर रिव्यू का कहीं से पूरा चैप्टर ही अपने रिसर्च में दे देते हैं। Just copied the research literature review chapter in a particular thesis and just incorporate in his her own thesis. So literature review comes under the purview of plagiarism, but you can easily untick the similarity index of the literature review portion. As all of you have seen the slide similarity index, हम लोग उससे क्या क्या बाहर करते हैं, जितने भी साइटेड आइटम हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में तो आप लिखते हैं ना, XYZ अपने स्टडी में ये पाया, उन्होंने अपने स्टडी में ये पाया, तो ये तो सब आपको साइटेशन देना है। और साइटेशन देना है, जब वो सिमिलरिटी इंडेक्स में आए तो उसको आप अनटिक कीजिए। ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैज द फैसिलिटी टू अनटिक द कोटेड आइटम, अनटिक्ड द साइटेड आइटम। आपके पास प्रोविजन है, इसलिए आप सभी टीचर से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक अपील है, जो उससे आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू को भी आप चेक करवाइए, अवश्य करवाइए, मैंडेटरी है ये, मान लीजिए। हाँ, और पूछें। Any more question, participants? Please wait. This is a very important issue regarding any thesis or any paper. So if you have any query, please raise. हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, Yes, मेरा yes, क्वेश्चन please ये है carry कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लिटरेचर रिव्यू, जब हम लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसे हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो अगर प्लेजरेंस रिपोर्ट जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे आपने बोला कि आपने उर्कुन बोला, लेकिन उर्कुन को तो हम यूज नहीं कर सकते। टर्निटिंग में अगर वो 0% लिखा है तो भी क्या वो सही है? क्योंकि 0%, कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं, कुछ परसेंट तो आना चाहिए आपका। नहीं नहीं, देखिए है क्या, मैं आपको बड़ी अच्छा प्रश्न आपने ही पूछा है क्या, जो प्लेगरिज्म कोई भी चीज आप इसको ऐसे समझिए, जब कोई भी चीज नई नई आती है ना तो उसको लेके कंफ्यूजन बहुत रहता है, और प्लेगरिज्म में अभी कंफ्यूजन बहुत है। क्यों आना चाहिए कुछ परसेंट? टर्निटिन, देखिए मैं किसी प्राइवेट वेंडर का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन आज के डेट में बीइंग ए लाइब्रेरियन, बीइंग ए स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑफ दिस फील्ड, मैं इसको कह सकता हूं जो टर्निटिन कंपैरेटिवली बेस्ट, तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली ठीक पैकेज है अन्य की तुलना में। तो अगर आपने देखिए प्लेगरिज्म का डिफिनीशन देखिए, क्या कहता है प्लेगरिज्म का डिफिनीशन, जो यूजीसी का पॉलिसी में देखिए, एनी वर्ड और आइडिया, वर्ड का अगर आइडिया भी किसी को अपने भाषा में भी करते हैं तब भी वो प्लेगरिज्म है। ये अलग बात है, जो अगर अपनी भाषा में लिखेंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन प्लेगरिज्म के डिफिनीशन में ये है, जो अगर किसी का वर्ड लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड लेते हैं, या उसके कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तो आपको अपने भाषा में लिखिए। एकदम रिसर्च तो यही है ना, जो भाई आप अपनी भाषा में लिखिए। लेकिन अगर किसी का रिकमेंडेशन है और उसकी अपनी भाषा में भी लिख दीजिए। डिट्टो, एक चीज यहाँ और मैं आपको बता दूं, अगर आप डिट्टो लाइन बाय लाइन लेते हैं तो पुट इट इन इन्वर्टेड कोमा, उसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। और अगर अपने वर्ड में लिखते हैं तो जस्ट उसको साइटेशन कीजिए, जो मैकबेथ ने ये कहा है, शर्मा ने ये कहा है, त्रिलोकीनाथ ने ये कहा है। तो आपको अपनी भाषा में लिखें, साइटेशन दें, और अगर डिट्टो वो लेते हैं, वो उनका वर्ड बाय वर्ड लेते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा में लिखिए आप। और कभी
भी अगर 0% आया तो अच्छी चीज है, लेकिन हाँ 0% सॉफ्टवेयर के द्वारा आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो हम अपने यूनिवर्सिटी में बराबर अनटिक के बारे में लोगों को बताते हैं तो पूरे के पूरे चीज को वो अनटिक कर देते हैं, तो यह एक अनइथिकल एस्पेक्ट है। तो ऐसे नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर तो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड नहीं पकड़ेगा, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट जो करेगा कभी आइडिया को डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिफिनीशन में आइडिया भी है। इसी से आपके ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई ना हो, तो इसीलिए इसमें ये एडवाइज ये की जाती है, जो आप जो है उसको लिखिए, इन्वर्टेड कोमा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक चीज और आपको बता दूं, आप लोग कोई पूछेंगे इससे पहले, सामान्यतः जो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, जो प्रीडेटरी जर्नल्स और प्रीडेटरी पब्लिकेशन मैंने क्यों बताया, जैसे दो रिसर्चर हैं, आप लोग एक ही कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई आपका मित्र रह रहा है और आपने आर्टिकल को भेज दिया कोई पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होने के लिए, और पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिकेशन का टाइम है वो एटलीस्ट 3 मंथ लेगा, क्योंकि उनके पास रिव्यू चाहिए, रिव्यूअर के पास भेजेगा। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट पर रिव्यू करने वाले 2-3 व्यक्ति हो, किसी की बेटी की शादी हो, कोई जो है अब्रॉड गया हो, कोई बीमार पड़ा हुआ हो, तो 5-6 महीने तक आपका रिव्यू ही नहीं होगा। तो और जो ये प्रीडेटरी पब्लिशर और जर्नल्स हैं, यह तो आप रात में दीजिए, 2 बजे सवेरे आपके पास पीडीएफ आ जाता है। तो सपोज कीजिए आपने कोई आर्टिकल को 1 जनवरी 21 को दिया छपने, प्रिंट होने के लिए, आप रेपुटेड पब्लिशर को, पीयर रिव्यूड जर्नल्स को, और वह पब्लिश होती है 1 जनवरी 2022 को, और कोई व्यक्ति 1 दिसंबर 21 को सवेरे दिया और 1 दिसंबर 21 को ही उसका शाम में आप वाली आर्टिकल ही पब्लिश होके आ गई, और उसने जैसे आपका आर्टिकल 22 में पब्लिश होके आया, उसने डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल को कंप्लेन कर दिया, जो ये हमारी आर्टिकल का इन्होंने कॉपी किया है, क्योंकि आपकी आर्टिकल बाद में पब्लिश हुई है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं, जो आप पूरा रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए, जैसे हमारे आप लोग भी अपने स्टूडेंट को जब थेसिस वगैरह आप प्लेगरिज्म चेक करवाते हैं, तो पूरी रिपोर्ट को आप सॉफ्ट कॉपी अपने पास प्रिजर्व रखिए, क्योंकि जैसे आपने किसी आर्टिकल को दिया पब्लिकेशन के लिए, तो जो उसके मेल किए हैं पब्लिशर एडिटर को, पब्लिशर को, तो वहां से जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है किसका, पीयर रिव्यूअर आपके पास डायरेक्ट नहीं करेगा, थ्रो एडिटर या थ्रो पब्लिशर, उस सब को रखिए अपने पास। क्योंकि मैंने बताया ना, जो प्राइमा फेसी, तो जो कि 1 दिन में पब्लिश हुआ, वो जब डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल के पास कंप्लेन करेगा तो आप तो गिल्टी हैं, जबकि आपने पहले दिया है, आपकी कॉपी करके उसने पब्लिश करवाया, लेकिन उसने 1 दिन में हो गया, आपका 1 साल में हो गया। इसीलिए जो यूजीसी की कमेटी है, उसमें डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल से ये कहा गया है, जो ये शुड बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में क्या है, जो हमने अगर कंप्लेन किया है, तो जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया है उसको भी बुलाया जाएगा, और जब दोनों को बुलाया जाएगा तो वह बताएगा क्या, जिस पहले वाला जो मैंने तो जनवरी 21 में किया था और उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है, और इन्होंने तो 1 दिन में पब्लिश करवाया, तो फिर आप बरी हो जाएंगे। तो प्लेगरिज्म में आपको रिकॉर्ड, 2 चीज आप ध्यान रखिए, एक तो हमेशा प्रॉपर साइटेशन दीजिए, एकदम साइटेशन ऑलवेज ओरिजिनल ऑथर को साइट कीजिए। दूसरा, इसमें जो तमाम तरह की जो अफवाहें हैं, जो 0% आया, ये सब नहीं, आप एकदम अफवाह में मत जाइए। साथ ही साथ आप जो आपके पास रिपोर्ट है, जो पब्लिशर के पास जहां भी मेल कर रहे हैं, प्रिंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सबका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए। यह क्योंकि देखिए मैं बता दूं, जैसे जैसे लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, आने वाले 2-3 साल में एकेडमिशियन के पास यह एक ऐसा एक एस्पेक्ट बनने जा रहा है जिसमें आपस में लड़ाई इसी पर होगी, और वह व्यक्ति जो कि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कीपिंग नहीं किया है, तो वह कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस सकते हैं। तो कीप प्रॉपर रिकॉर्ड। हाँ सॉरी, आप लोग पूछिए कुछ और, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। विप्लव जी, एनीवन? Yes sir, yes sir. Yes sir, very much knowledgeable. Okay, any other questions, participants? Yes, Ravinder sir. Sorry sir. Okay sir, one simple question from my side. There are a lot of online plagiarism testing softwares which are free of cost, but they can only do the
plagiarism only for, I think, 1000 words. So are they reliable? Can we trust them? Not at all. Only for study and teaching, only for knowing the working style of plagiarism detection software, you can use it. Otherwise, it is not advisable to use any free software for plagiarism detection. At least nowadays, University Grant Commission is providing Urkund, and each and every government college, government institution, even private college, private institutions are entitled to get free access of Urkund software. And Urkund, by and large, is not bad. It's good software. So you can use it. Otherwise, it is not advisable to use any ओपन सोर्स प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, बिकॉज कभी कभी क्या होगा, जो आपका जो योर ओरिजिनल वर्क आपने सबमिट किया और वह उसके द्वारा चोरी कर लिया जाता है, क्योंकि जो फ्री एक्सेस है उसका कहीं पर कोई आप कुछ उसको जितना आप उसमें एनर्जी जाएगा उसको डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा, तो कहीं से आपके पकड़ में आने वाला है नहीं। तो कई एक ऐसे खास करके एक दो ऐसे सॉफ्टवेयर में हमारे दोस्त लोगों ने ही चेक करवाया जो बिल्कुल उनका ओरिजिनल वर्क हुआ, जो आज रिपोर्ट आ रही है मेल करता जाए और महीने भर के बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला उससे पहले किसी की एक किताब आ गई उस पर। तो इसीलिए आप इसको अवॉइड कीजिए, और इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इन्फ्लिमनेट के माध्यम से ई शोध शुद्धि से आपको उर्कुंड दे रहा है। और उर्कुंड ठीक है, उर्कुंड ठीक है, टर्निटिन के इतना बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक है, बिगिनर के लिए ठीक है। पहले आप इसी को यूज करके एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट इज प्लैगियरिज्म। Okay, sir. Some research scholars have been seen to block their proposal, blogging in the internet. Whether it is a good solution? Not at all. Basically, nowadays, your dissemination of knowledge plays a vital role in research and development. And University Grant Commission is also said that you should publish your research work. So, blocking of any article, any research is a crime. So it is not advisable. Please do not do this type of activity. No, sir. Blogging of own article means, I mean, those who are giving research proposal. Yeah, so yeah. that proposal they should blog. They say that for future there might be some problem who might steal their projects or their titles of their research. So they blog their own proposal in the internet. Not Is at it all. a good idea? Not at all. There is a project of Sodh Gangotri being run by the Inflinet. So the major thrust of the Sodh Gangotri is that you should submit your research proposal on which topic you are working. You should submit the research proposal on Sodh Gangotri project. So it is not advisable. Only thing is you should preserve, you should proper preserve the record. आप जिस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, आज से आपने काम करना शुरू किया, आप ग्लोबल कर दीजिए, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि दोबारा कोई ना करे। क्यों ब्लॉक करेंगे? दोबारा उस पर कोई करे ही नहीं, या कोई करेगा भी तो आप चूंकि पहले आपने स्टार्ट किया है तो यह आपका है, उसको ब्लॉक करके आज के डेट में यह प्रैक्टिकली मतलब कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है। जो अगर आपको पूरा जब ग्लोबल विलेज की बात हो रही है तो आप इसको नहीं, और गवर्नमेंट इस पर कई प्रकार के प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, तो आपको ब्लॉक नहीं करना है, आप जो है उसको एकदम, लेकिन हाँ आपको रिकॉर्ड कीजिए, आप प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए, अपने पास रिकॉर्ड रखिए। और आपने अगर रिसर्च पहले शुरू किया और कोई आपसे बाद में करके पहले कर भी दे रहा है तो आपका क्लेम बनता है जो भाई आपने पहले शुरू किया है, और ऑफकोर्स अगर आपका वो नकल नहीं किया है तो देयर विल बी सम डिफरेंशिएट, उसमें कुछ डिफरेंस तो होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स? Sir, is there any limitation to use the Urkund software? Yeah. Is there any limitations for a research scholar to use the Urkund software? Yeah. Basically, university Inflinet is providing 4 articles in a year to a research scholar. But you should consult with university, and they are always extending the limitation. So it is not an issue.
in our university, some people have checked his article. Tomorrow, I was in a meeting and see a research scholar submitted his article 35 times. So there is a official limitation, but you should submit so many times. And try to say you are the coordinator of the Urkund or Sodh Ganga, and they should write to InfluMnet, and InfluMnet easily enhance the quota of the. Otherwise, there is a limitation of 4 articles in a year. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, I don't think we have any other questions for the time being. Okay, sir, it was really an interactive session with you, sir. And it's really appreciating that you have widened our knowledge to some important issues which otherwise could land up into trouble. Sir, thank you, sir, for this session. Sir, we'll keep in contact with you. Thank you for coming over here, sir. Thank you. Thank you. Welcome. Okay, आप सभी लोगों को नमस्कार. Good afternoon. Thank you, sir. Okay, dear participants, now we have come to the conclusion of our 5 days workshop. So I would not like to waste your precious time anymore. Though we have in the program schedule, we have written as valedictory session. So there will be no such valedictory session. But I would like to hear from 1 or 2 of you regarding your experience or any suggestions you have, or what expectations you had come and how far your expectations have been fulfilled. So any 1 or 2 of you, please. Any 1 of you, please come. Say something about this workshop. How you felt, your experience, any suggestions? Sir, it was a fine workshop. We appreciate your efforts. The experience we get from your workshop is very nice. We have the resource persons from all over India, from east, west, north, south. This was appreciable. We use Jamovi we learned to use Jamovi software, and it was nice experience for me. Earlier I used only SPSS for practical application. Sir, one thing I want to add is to take some classes in further is to construct questionnaire, and that after constructing the questionnaire, how we convert that into practical coding, and after that we apply the research from the base level. That Yes, is want yes, to say. yes, yes. Thank you, Yes, sir, for your efforts. in future, sir. Okay, sir. Any other person? Participants, anyone? Okay, that doesn't matter. Some of you are maybe. Hello, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Please. It's very praiseworthy that you conduct such a nice workshop, and we got some new insight about the research methodology and how to do research. But one thing is very important, as who enroll recently, those who goes through some sort of literature review. So I just want you Yes. conduct such a so Yes. Sure, sir. Sure. I have gone through in a very well manner how to conduct literature review. So that's a very important part of literature review, and it also helps us to publish a journal that is mandatory for researcher. So it will help us immensely, sir. So please consider it as urgent as Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. it's a request. Yes, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Good Okay, afternoon, anyone? sir. Yes, sir. Good. Madam, please. Thank you, sir, for a very informative session. And it was really very nice. Due to some certain sessions I could not attend, full session I did not attend due to some technical, as well as I had some work. But it was really very nice session with all. And this session on taken by Bhupendra sir, Dr. Bhupendra, it was really very nice. And we had because when we are submitting PhD thesis, then at that time these things are very important to know about the plagiarism,
and even he explained very nicely how to go through that process, and really it was very all the sessions were excellent, sir, and your efforts are really Thank you. appreciated. And really, on behalf of our UCA Tarsadia University, I am thankful Okay. to you that you conducted such type of session. And sir, we would request you, as sir told, that in future we would like to have such type of sessions. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Everyone keep in touch for your various programs which you might have in your institutions. Do inform us also so that we can participate. Accordingly, our academic performance will get better once we help each other. If anyone want to say anything, any more, any suggestion? Okay, no problem. So now we are coming to the end of this program. Now, one or two more things I need to say, that is regarding your certificate. You will get the certificate within 1 week. Though it might not take 1 week, yet we have to sit for some official procedures. Because of this, I'll ask you 1 week time for your certificate. And today itself will give you a link for your feedback, and you write the exact name, and if there is any title like doctor and all, you write the exact one so that we can print the certificate in that manner. And also your institutions. And other more things, nothing more, but since you have come over here, it is also, I should thank you everyone from the part of my committee, my organizing committee, and also my college. Wish you all, everyone, for a good research. And we shall keep in contact, because we are having a new program very soon, that is international seminar, conference, international conference, that too will be online in the month of October, regarding which you have already got the brochure. And in the month of February, we are having one more workshop, and there we will include maybe whatever you have given the suggestions. And if any other suggestions, do write to me either in WhatsApp or through mail. There will be no problem. So anyone have any other doubts, please clarify so that we can close up. Okay, no problem. Yes. Yes, sir, please. There is no doubt, sir. Everything is fine. Okay. So we will wait for your invitation, sir, in Feb Yes, or sir. whatever earlier. Okay, sir. Yes, sir. So, Thank sir, you. Thank you, sir. everyone, whether you can put on your camera so that let me take a photo shot. Can you please, everyone? So participants here are less, but whatever it is, please everyone. Everyone, please. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you. And bye. Thank Good you, sir. evening. Have a nice time. Good evening. And we'll keep Thank in you, sir. touch with you all. Thank you, sir. Thank you for your Thanks, support. Thank you, sir. Come over here. You have given us a lot of support. Thank you. Hello, is it over? Yes, this is over, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you.